Hello friends, so today we are going to start with your chapter number 3, that is Business Services 2. So when I talk about Business Services 2, तो Business Services 2 वाले चैप्टर में हमें पूरा बैंकिंग समझना है. We are going to understand the whole concept of banking, बैंकिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, etc etc etc. There are a lot of things that we are going to understand in this particular chapter. On your screens you can see the chart that I have prepared. I am going to zoom it in so that you can clearly see the chart. You can even write the chart also. But हम क्या क्या देखने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में, तो मैंने एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर कवर करा है एज यूजुअल. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बैंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक दैट बैंक्स आर performing, what are the types of bank accounts that we are having, what are the services that banks are providing, then e-banking, and then other services which are associated with bank. So these are the things which we are going to understand in this particular chapter. So without wasting any more time, let's start with the concept of banking, and there are certain things that we are going to clear it out today. The first part that we are going to deal with is what meaning of bank. What do you mean by bank? आपको क्या पता है बैंक्स के बारे में, बैंक क्या होता है? आपके घर के पास जो है वो बैंक ऐसा, या ट्यूशन्स के पास जो है वो बैंक, बैंक का काम क्या होता है? तो बस पैसे रखना है ऐसा. समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट बैंक्स. आपने अभी तक बैंक के बारे में क्या पढ़ा हुआ है या क्या आइडिया है, या कभी पेरेंट्स के साथ बैंक में गए हो तो यू मस्ट हैव सीन बैंक्स वर्किंग, राइट. अब बैंक का मेजर इंस्टीट्यूशन जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसका मेजर काम क्या है? तो इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपॉजिट. लोगों का एक तो पहली बात तो ट्रस्ट गेन होना चाहिए बैंक्स के पास, तभी जाके लोग जाएंगे उधर और डिपॉजिट करेंगे पैसे, राइट. सो इट इज एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स व्हाट? डिपॉजिट. विच कलेक्ट्स व्हाट? मनी इन ऑर्डर to lend them with a condition to return it at the end of the fixed term or whatever whenever it is demanded. मतलब first of all टू कलेक्ट द डिपॉजिट्स, राइट. डिपॉजिट कलेक्ट करना किसी के पास से वहाँ ख़त्म नहीं होता, एंड देन टू लेंड दोज डिपॉजिट्स टू पीपल, जिसको ज़रूरत होगी उनको बैंक्स पैसे देगी, एंड विद अ कंडीशन टू रिटर्न इट बैक, वापस लेने पड़ेंगे जो भी अपना प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड है तब तक, राइट. सो दिस इज व्हाट बैंक मीन्स, एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स द डिपॉजिट, विच लेंड्स द मनी. द मेन रोल दैट बैंक्स आर प्लेइंग इज व्हाट? Collecting the deposits and giving the loans, right, rather lending the money. So bank, it is an institute which what? Collects deposit in order to what? Lend them with what? A condition that to return it at the end of a specified time period or whenever it is demanded, right. इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, ये एक सिंपल वाली डेफिनेशन हो गई. दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें से पहली शायद आप सोचने लगो, पर सेकंड तो आप इजीली लिख पाओगे. इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज बैंक, but that is not the actual definition. The definition that you are supposed to write in your exam is the first one that I have written on the screen, right. So this is what the meaning of bank, right. So now when I talk about bank, या ये bank word derive कहाँ से हुआ, there एक काम करते, let's understand this particular thing from your textbook as well, ताकि आपको एग्जैक्ट जगह पे कहाँ पे है ये चीज़ पता चले टेक्स्ट बुक में, राइट. So here you can see, wait a minute, I'll be doing the highlights for you so that you can also just make it important, क्योंकि ये 1 mark में they are going to ask you, right. So here on your page number 22, आपका सबसे पहला पेज ही है चैप्टर का. बिजनेस सर्विसेज 2 चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 22 इज देयर, जिसमें हमें क्या अंडरलाइन करना है ये चीज़. The institute providing services of banking is called a bank. That is okay, fine. That is the first bank of the world. ये चीज़ हमें MCQ में पूछी जा सकती है. The first bank of the world started in Geneva in the year 1407. ये हमें MCQ में पूछ सकते हैं. So please underline the same.
द वर्ड बैंक कहाँ से डिराइव हुआ? इटालियन वर्ड्स बैंको में से। कहाँ से डिराइव हुआ? इटालियन वर्ड्स बैंको में से। अब ये इटालियन वर्ड्स बैंको जो है वो एक्चुअली है क्या? तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे उस जगह की मैं बात करूँ तो लोग एक बेंच पे बैठ के मनी लेंड करने का काम करते थे, जो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही होगा मे बी। द वर्ड इमर्ज्ड इन अ रोमन एम्पायर वेयर द मनी लेंडर्स नोन एज मैकेला यूज्ड टू एस्टैब्लिश देयर स्मॉल टेम्पररी शॉप्स ऑन अ लॉन्ग बेंच कॉल्ड एज बैंक यू। एज आई सेड, एक लंबी सी बेंच पे बैठ के मनी लेंड करने का दे यूज टू प्रोवाइड सच सर्विसेज एंड सच बेंचेस वर कॉल्ड बैंक यू, राइट? सो फ्रॉम दैट वर्ड द बैंक वर्ड इज derived. So they may ask you this, the word bank you and bank have been derived from this. I hope you all are clear with the same. हमें MCQ में पूछे तो आना चाहिए, एक मार्क भी इसमें कट नहीं होना चाहिए. Meaning that I have already explained you. Now when I talk about functions, now let's get back to the chart once again. Just a moment. The next topic, rather not the next topic, but the next thing that we are going to study after the meaning of bank is the functions of bank. बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बैंक क्या काम करता है. मैं बुक का कुछ पढ़ा हूँ या चार्ट में से कुछ पढ़ा हूँ, इससे पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइज कि आपको क्या पता है बैंक क्या काम करता है. द मोस्ट कॉमन आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड सो फार इज कि बैंक डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है, बैंक पैसे देता है, बैंक लोन देता है. ऐसे सब कुछ मैंने आप लोगों से ही सुना हुआ है, राइट? सो येस, यू ऑल आर राइट कि भाई बैंक पैसे देता है, लोन देता है, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ फाइन. बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ बैंक इन टू ब्रॉड मेजर पार्ट्स, दैट इज मेन फंक्शंस एंड सब्सिडियरी फंक्शंस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मेन फंक्शंस, मैं बैंक के मेन फंक्शंस की बात करूँ तो जिसमें हमें कुछ 4 फंक्शंस ध्यान में रखने हैं. दिस आर द 4 मेन फंक्शंस दैट बैंक परफॉर्म्स. The first one is to accept or collect the deposits. एक्सेप्ट करना डिपॉजिट या कलेक्ट करना डिपॉजिट. चलो ये तो इजी, भले याद रह जाए वैसा भी है और हमें पता भी है कि बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है. पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वे बैंक है तो बैंक में ट्रस्ट, कस्टमर्स का ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ की रोल दैट इट इज़ प्लेइंग, राइट? कि भाई कस्टमर का ट्रस्ट है तब जाके लोग वहाँ पे जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं. मैं ऐसा बोलूँ कि मैं कल जाके ABC करके बैंक खोल दूँ तो क्या लोग मेरे पे ट्रस्ट करने लगेंगे? क्या लोग सीधा आके मेरे बैंक में पैसे जमा करने लगेंगे? द आंसर इज नो. यू नीड टू गेन ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स फर्स्ट, देन ओनली दे विल बी रेडी टू गिव यू डिपॉजिट्स और देन ओनली दे विल बी रेडी टू गिव एनी मनी इन योर बैंक, टू कीप एनी मनी इन योर बैंक अकाउंट, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इन द चार्ट. Trust of customers for accepting the deposit is investments and interest on regular intervals. मतलब हमने ये डिपॉजिट्स ली कस्टमर्स के पास से, राइट? व्हेन आई एम टेकिंग सच डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इट, वी आर यानी कि बैंक्स आर सपोज टू पे देम इंटरेस्ट ऑन रेगुलर इंटरवल्स. वी नीड टू सी वेदर इट इज़ अ सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. बट येस, बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट वॉट इंटरेस्ट ऑन इट, राइट? बैंक आपको एक रेगुलर इंटरवल्स पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, राइट? सो सम पीपल प्रेफर टू डू दिस फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ थिंग कि भाई उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो दे कीप इन बैंक्स सो दैट बैंक कैन पे देम इंटरेस्ट एंड इट इज सेफ, क्योंकि ट्रस्ट है बैंक के ऊपर तो सेफ है कि भाई चलो बैंक में रख देते हैं, चलेगा, फाइन. देन नेक्स्ट इज टू लेंड मनी, लोगों को पैसे देना, एंड दैट टू इंटरेस्ट एट अ हायर रेट. अब ये क्या बात होगी इंटरेस्ट एट अ हायर रेट? मतलब समझना अच्छे से. बैंक provides money to people, bank lends money to people, right? That is fine, that is okay. But जैसे मैं बोलूँ कि मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए पैसे एंड बैंक इज पेइंग मी 6% पर एनम का इंटरेस्ट, पर एनम यानी पर ईयर का इंटरेस्ट. और जब मैं बैंक के पास गई लोन लेने के लिए, मुझे लोन चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट्स दैट आई हैव मेड, आई वांट टू बोरो सम मनी फ्रॉम बैंक, तो बैंक मुझे ऐसा बोलेगा
हम आपको पैसे देंगे, यू आर सपोज टू पे अस द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ये क्या हो गया, बैंक ने जब डिपॉजिट्स कलेक्ट करी थी तो उसके ऊपर बैंक हमें जो इंटरेस्ट पे कर रहा था दैट वाज 6%, पर जब बैंक हमें लोन दे रहा है और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है दैट इंटरेस्ट इज 10%। द डिफरेंस अमाउंट इज द थिंग बाय विच बैंक्स कैन अर्न। समझ में आया, इंटरेस्ट एक साइड बैंक हमें देता है, दूसरी साइड हमारे पास से इंटरेस्ट लेता है। सो द डिफरेंस अमाउंट दैट बैंक इज अर्निंग सम मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज समथिंग विच दे आर अर्निंग, राइट। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं इन केस ऑफ टू लेंड मनी, राइट, कि भाई पैसे लेंड करने हैं, किसी को पैसे देने हैं, बैंक पैसे दे रही है, तो देयर विल बी टू वेज बाय विच बैंक कैन गिव यू मनी। देयर आर many other ways but that we'll understand later on. To lend money, for lending money there are two ways. First is what, bank overdraft or cash credit, and another one is what, bank loan. So when I talk about bank overdraft और when I talk about cash credit, that is something जहाँ पे बैंक आपको वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है ऑलरेडी कि भाई मुझे आज लेट से मेरी बैंक में प्रेस्टीज बहुत अच्छी है और मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ नहीं है, अभी एज ऑफ नाउ 4 लाख रुपीज़ है, और मुझे किसी को अर्जेंट बेसिस पे पेमेंट करना है। इन दैट केस बैंक विल टेल मी व्हाट, कि भाई नो प्रॉब्लम, वी विल पे यू 1 लाख रुपीज़ ऑन योर बिहाफ, आप भले चेक जाने दो, हम आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं, आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए डलवा देते हैं। वेन एवर यू गेट द मनी यू गिव इट बैक टू अस, राइट। दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दैट इज अ शॉर्ट टर्म थिंग व्हेन इट कम्स टू बैंक लोन, दैट कैन बी ऑफ 7 years, 5 years, 10 years, depending upon the thing for which you have taken loan. It could be home loan, it could be car loan, it could be business loan, it could be personal loan, anything, right? So that depends upon the purpose for which you have taken the loan. Then next is to invest. बैंक का काम क्या है, इन्वेस्ट करना। कहाँ इन्वेस्ट करना, बैंक कहाँ इन्वेस्ट करेगी? देयर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ कंपल्शंस बनाए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि कुछ परसेंटेज बैंक्स को कंपल्सरीली गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल जो भी सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिनेंशियली केपेबल यूनिट्स होंगे तो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग विच बैंक्स आर यूज टू डू, राइट। पर वो सेफेस्ट प्लेस होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो ऐसे पैसे डूबने का चांसेस इन दैट केस इज नॉट देयर, राइट। सो टू इन्वेस्ट, दैट इज द थर्ड केस। एंड फोर्थ वन इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। मतलब इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये हुआ कि चलो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, बैंक ने किसी को लोन दिया, ऐसा वैसा ये सब तो चलता रहता है नॉर्मल कामकाज। पर ऐसा हुआ कि कुछ पीरियड के लिए, मे बी फॉर अ डे और 2, कोई बैंक में पैसों की थोड़ी डेफिशिएंसी आ गई, शॉर्टेज आ गई। बैंक को पता ही है पैसे आने वाले, कोई बंदा आके इंटरेस्ट पे करने ही वाला है, and there are group of people who are going to pay them interest. पर as of now bank is having some shortage of money. बैंक को क्या है, अभी थोड़ा सा shortage है पैसों का। In that case what banks will do? ये क्या हो गया, shortage of money हो गया। अब ये shortage of money जो है उसको फुलफिल करने के लिए बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई को बोलेगी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास से पैसे दे देंगी? द आंसर इज नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता रहता है कि भाई कौन सी बैंक में शॉर्टेज हुआ है और कौन सी बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है। दोनों बैंक्स एक दूसरे को अंदर अंदर नहीं जानते। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स बैंक इज देयर और वो एक्स बैंक जो है उसके यहाँ पैसों की शॉर्टेज है, एंड देयर इज अ वाई बैंक, उसके पास सरप्लस पैसा है। एक्स बैंक विल गो टू आरबीआई एंड विल टेल देम कि भाई वी वांट सम मनी। In that case, RBI will collect money from Y bank and will provide to X bank. So X and Y won't be knowing each other कि किसने किसको पैसा दिया, पर ये जो shortage of money जो fulfill हुई उसको बोलेंगे call money. They may ask this in 1 mark also, and they may ask the whole thing for 3 marks also.
When bank faces short-term liquidity that you can see on your screens, liquidity issued can borrow the same from other banks. When bank gets demanded fulfill instantly, it's called call money. Correct. And the interest, definitely बैंक भी भले पैसे ले रही है पर interest तो pay करना ही पड़ेगा. In that case, the interest rate which it is supposed to pay on the same is called what? Call money rate. I hope it is completely alright and completely clear. The main functions of banks are clear, right? So 4 functions हमने देखे. To deposit, rather to collect the deposits. Second is to lend the money. Third is to invest, and fourth is the interbanking transactions. Now when I talk about the subsidiary functions, let's do one thing. Let's keep it till here only. Main functions हमने करे and meaning करा. Subsidiary function is again quite a big topic. So we'll be doing that in our next session. I hope you are clear with the meaning and main functions of bank. Thank you.